जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। What is the price elasticity of demand? It is the degree of responsiveness of quantity demanded to change in price. And in simple words, we can say it is the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in price. And price elasticity of demand is denoted by EDP or PED, price elasticity of demand. EDP means elasticity of demand regarding the price. If we apply this formula and we get the answer greater than 1, it means there is a greater percentage change in quantity demanded in comparison of percentage change in price. And if we get the answer lesser than 1, it means there is a lesser percentage change in quantity demanded in comparison of percentage change in price. And if we get the answer equal to 1, it means there is equal percentage change in quantity demanded and percentage change in price. For example, if we get the answer, we apply this formula and get the answer -5, it means the percentage change in quantity demanded is 5 times bigger than the percentage change in price. This minus sign shows there is inverse relationship between price and quantity demanded. Ignoring this sign, if we get the answer, suppose -3, it means percentage change in quantity demanded is 3 times greater than the percentage change in price. In this case, the price elasticity of demand would be greater than 1. If we get, suppose, the answer -0.5 or -1/2, it means the percentage change in price is greater than percentage change in quantity demanded. Again, this minus sign shows there is inverse relationship between price and quantity demanded. So if the answer is lesser than 1, price elasticity of demand would be lesser than 1. And if the answer is -1, -1 answer shows there is equal percentage change in quantity demanded and percentage change in price. So ignoring the sign, the price elasticity of demand might be greater than 1, equal to 1, or lesser than 1. What this sign shows, if we get the minus sign in the answer, it means there is an inverse relationship between price and quantity demanded and it indicates the good is normal. जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल गुड के केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है और ज़्यादा होने से कम होती है. On the other hand, if we get the plus sign in the answer, it means there is a direct relationship between price and quantity demanded, and it indicates the good is given. गिफन गुड एक ऐसी गुड होती है जिसके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है ये भी इंपॉर्टेंट होती है और जो साइन है ये भी इंपॉर्टेंट होता है. और ये चीज़ बड़ी यूज़फुल है अगर आप अभी से सीख जाएंगे, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ को करने के लिए ये बहुत अहम है कि इसके माइनस का क्या मतलब है और वैल्यू का क्या मतलब है. अब हम ये जो फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं. एज वी नो, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैन बी रिटन एज द डेल्टा क्यू चेंज ओवर ओरिजिनल इनटू 100. परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला यही होता है
कि चेंज को आप ओरिजिनल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सेम एज if we want to get the percentage change in P, it would be delta P over P into 100. So this formula can be written as delta Q over Q into 100 divided by delta P over P into 100. This 100 cancel out हो गया, and this formula can be written as delta Q over Q divided by delta P over P. So this formula and this formula are the same things. अगर हम कैलकुलेट करना चाहें प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, तो both formulas can be applied. These are the same things. ये जो रिस्पॉन्स है क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के चेंज होने से, ये डिफरेंट हो सकता है. जैसे अभी हमने देखा कि आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है. तो इसकी 5 डिग्रीज हैं. पहले अभी हमने पढ़ा कि इक्वल टू 1 कब होता है, तो जब देयर इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होगी, तो जो आंसर है वो 1 आएगा. एंड दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. So what is the unitary elastic demand? When the elasticity of demand is equal to 1, and when it will be happened when there is equal percentage change in quantity and the percentage change in price. For example, this is the price, this is the quantity demanded. If the percentage change in quantity and the percentage change in price is equal, the answer would be 1, and it is called unitary elastic demand. In this case, if we draw a curve, demand curve, that shows the inverse relationship between price and quantity demanded, तो इसकी स्लोप कैसी बनेगी? इसकी स्लोप बनेगी नॉर्मल, जो कि ना ही स्टीपर होगी और ना ही फ्लैटर होगी. अगर कोई डिमांड कर्व बना हो और उसकी स्लोप नॉर्मल हो, ना वो ज्यादा स्टीप हो ना ज्यादा फ्लैट हो, तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1. तो इक्वल टू 1 के केस में जो डिमांड कर्व होगा वो एक नॉर्मल स्लोप रखता होगा. इसके बाद इसकी सेकंड जो डिग्री है, दैट इज द इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक डिमांड कब होती है? जब ईडी ग्रेटर देन 1 होता है. और अभी हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि आंसर जो है ग्रेटर देन 1 कब आएगा? व्हेन the percentage change in quantity is greater than percentage change in price. अगर percentage change in quantity percentage change in price से ज्यादा हो तो आंसर greater than 1 होगा. मैं पहले ही बता चुका हूं, ignoring the sign. तो ऐसे केस में अब ये देखें, जैसे इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो 100% से भी ज्यादा है और प्राइस में परसेंटेज चेंज कम है. ऐसे केस में जो डिमांड कर्व बनेगा वो रिलेटिवली फ्लैटर होगा. फ्लैटर, ऐसे फ्लैटर की शेप होती है लाइक दिस. स्टीपर होगा, तेजी से गिरता होगा, और नॉर्मल होगा, दोनों एक्सिस से एक जैसा फॉल कर रहा हो. तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी. फिर तीसरा इसका जो डिग्री है वो है इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड कब होती है? जब ईडी लेसर देन 1. और ये कब होगा? इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेसर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ऐसे केस में अगर हम ये देखें ये क्वांटिटी है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है दैट इज लेसर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये एब्सोल्यूट चेंज नहीं कह रहा, परसेंटेज चेंज. अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये तो 10% बनता है और ये उससे कहीं ज्यादा. तो ऐसे केस में जो डिमांड कर्व बनेगा उसकी शेप क्या बनेगी? दैट वुड बी स्टीपर. इसको क्या बोलते हैं? स्टीपर. तो अगर डिमांड कर्व स्टीपर बने तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी?
that would be lesser than 1, lesser than 1। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू 1 कब होगी, जब ग्राफ बनेगा नॉर्मल, उसकी स्लोप होगी नॉर्मल। ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब ग्राफ बनेगा फ्लैटर, फ्लैटर। और लेसर देन 1 कब होगी, जब ग्राफ बनेगा स्टीपर, स्टीपर। दो इसके एक्सट्रीम केस हैं, एक है परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड तब होती है कि अगर प्राइस में चेंज ना आए लेकिन क्वांटिटी में चेंज आता चला जाए, सॉरी, अगर जो क्वांटिटी में चेंज ना आए और प्राइस में चेंज आता जाए, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनएलास्टिक डिमांड। कि प्राइस में चेंज आ रही 10, 8, 6, but the quantity is 100, 100 and 100। In this case, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आंसर 0 आएगा। तो 0 का मतलब है नो चेंज इन क्वांटिटी, नो चेंज इन क्वांटिटी। अगर इसको आप ड्रॉ करें, यानी प्राइस में चेंज आता जाए, on x axis we are taking the price, on y axis we are taking the price, on x axis we are taking the quantity। और इसको अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ये किस तरह का बनेगा, एक वर्टिकल लाइन बनेगी। तो इन दिस केस द इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी, दैट वुड बी 0। 0 मतलब नो चेंज इन क्वांटिटी। ये एक एक्सट्रीम केस होता है, जैसे कि आप ये समझ लें कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, जिसको किसी भी कीमत पे आपने खरीदना होता है, लेकिन ना ज्यादा खरीदना ना कम खरीदना, तो इन दैट केस इलास्टिसिटी डिमांड वुड बी इक्वल टू 0। और जो ग्राफ बनेगा, द शेप ऑफ द ग्राफ वुड बी वर्टिकल। एंड द फिफ्थ वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये एक और एक्सट्रीम केस है कि अगर प्राइस में जो है वो चेंज ना हो लेकिन क्वांटिटी सेम प्राइस पर चेंज होती चली जाए, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या इन्फिनिट। इसको इन्फिनिट कहते हैं, दूसरे को 0 कहते हैं, या परफेक्टली इनएलास्टिक कहते हैं। इस केस में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की शेप क्या बनेगी, दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और इलास्टिसिटी डिमांड इज इन्फिनिट। सो हमने 5 डिग्रीज आज डिस्कस की इलास्टिसिटी डिमांड की। कौन सी 5 की, हमने देखा कि इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 हो सकता है। इक्वल टू 1 कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्यू इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, और इस केस में जो ग्राफ बनेगा उसकी नॉर्मल स्लोप होगी। तो दो चीजें याद रखने की हैं, एक तो इक्वल टू 1, फिर इक्वल परसेंटेज, और तीसरी चीज इसकी आ गई ग्राफ क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। फिर हमने पढ़ा ग्रेटर देन 1 कब होता है। तो ग्रेटर देन में हमने कहा कि परसेंटेज चेंज इन क्यू जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इस केस में जो ग्राफ बनेगा उसकी शेप क्या होगी, वो फ्लैटर होगी, रिलेटिवली क्या होगी, फ्लैटर होगी। ये डिमांड कर क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा। तीसरा हमने पढ़ा इलास्टिसिटी डिमांड लेसर देन 1 तो कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन क्यू जो है दैट इज lesser than percentage change in P। and in this case जो शेप ऑफ द ग्राफ बनेगी वो स्टीपर होगी, यानी ये स्टीपर है, इस केस में ये नॉर्मल है, और ये क्या है, ये फ्लैटर है। फिर दो एक्सट्रीम केस हमने पढ़े, ईडी इक्वल टू 0। 0 का मतलब है कि नो चेंज इन क्वांटिटी, और अगर क्वांटिटी में चेंज नहीं होगी तो ग्राफ क्या बनेगा, एक वर्टिकल शेप उसकी ग्राफ की बनेगी। और इसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और फिर हमने कहा कि ईडी जो इन्फिनिट कब होगा, इन्फिनिट उस वक्त होगा कि जब प्राइस में चेंज ना आए लेकिन क्वांटिटी चेंज होती चली जाए। तो ऐसे केस में जो डिमांड कर्व बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, और इसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये 5 केसेस हैं
और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत यूजफुल हैं। अगर आप ओ लेवल्स, ए लेवल्स, सीए, किसी भी तरह के जहाँ पे कोई एमसीक्यूज इन्वॉल्व हैं, अगर उनके पेपर्स देखें तो उसमें आपको आज का जो हमारा लेक्चर है इससे कई चीजें आपको इस तरह की मिलेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।